Okay, let's turn our Bibles to Luke 10th chapter verse 19. हमारे बाइबल को हम फिराएंगे. अगर आपका बाइबल है तो मेरे साथ आप जुड़ते रहिए और मेरे साथ आपका बाइबल को फिराते रहिए, क्योंकि हम सब लोग सिर्फ बात करेंगे नहीं और हम सब लोग वचन देखेंगे और वचन को समझेंगे. Amen. We will see the word and we will try to understand the word, because we cannot just talk. We cannot just keep talking. Whatever I know, I cannot tell. No. Let's talk from the word. Amen. Okay. Luke 10:19 says. Okay, यहाँ पर वचन, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है. मैं जो भी मुझे हिंदी समझ में आएगा और मैं जो कुछ आपको इंग्लिश में जानकर मैं हिंदी में बता सकूंगा तो मैं वो करूंगा. Amen. मेरा थोड़ा हिंदी उधर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे माफ कीजिए. ओके, एंड आई वांट एवरीवन टू प्लीज I want you all to comment so that I will know you are hearing it. One. Second, I will understand that you are also understanding what I am preaching. Amen. Hallelujah. Okay. हमारा बाइबल को हम पढ़ेंगे लूक 10वां अध्याय 19वां वचन. यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, Behold, I give you the authority to trample on the serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. यहाँ पर वचन कहता है, मैं तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को कुचलने के लिए और समस्त शैतान के अधिकार के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूं और तुम्हें कुछ भी वहां पर हानि नहीं करेगा. Hallelujah. Word of God is so clear. Now Jesus, this is the words of Jesus. Jesus is saying to his disciples, what is he saying? Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the powers. Over all the powers of the enemy means you tell any power of the devil, you tell any power of the Satan. This word says clearly that Jesus has given authority over that. Amen. Hallelujah. किसी भी authority ले लो, किसी भी पावर ले लो, वर्ड बोलता है उसके ऊपर हमें यीशु ने उनके चेलों को दिया है. अभी यीशु ने उनके चेलों को दिया है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि यह हमें भी दिया गया है. We also have this. Amen. So clear. Behold, I give you the authority and power to trample on the serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall any means hurt you. कुछ भी तुम्हें हानि नहीं कर सकेगा. Nothing by any means shall hurt you. Hallelujah. See, many people today, are locked down in the houses because of coronavirus. Why they are locked down is, government thought, if they roam outside, if they come outside, if they meet others, if they, just walk outside the house, people will meet each other and, they may get this coronavirus impacted or infected through this coronavirus, and they may fall sick. That's why government thought it is better and safe people staying at houses. Amen. But why Bible says तुम्हें कुछ भी हानि नहीं कर सकेगा. Hallelujah. Nothing by any means shall harm you. Hallelujah. If God's word is saying nothing by any means shall harm you means, is there a tendency or is there any possibility the believers or so-called Christians believe that they might get harmed or they get hurt or they get impacted by this virus? No chance. No chance. Amen. Hallelujah. See, but still there are so many people in this world living in fear, living in confusion, living in chaos. Why? Because they have a fear we will get the coronavirus or what. Right? My friends, listen to me carefully. मेरे भाइयों सुनो, यहाँ पर वचन कहता है यीशु ने हम सबको, जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास रखता है उन सभी को अधिकार दिया गया है. हालेलुया. किसके ऊपर? समस्त शैतान के अधिकार के ऊपर. आमीन. हालेलुया. समस्त शैतान के ताकत के ऊपर, समस्त जो कुछ भी शैतान सोच सकता है कि वो तुम्हें हानि कर सकता है, ये बीमारी से, ये वायरस से, ये कीटाणु से, उन सब के ऊपर यीशु ने हमें अधिकार दिया है. हालेलुया. आमीन. Amen. Okay, let us go little detail. Okay, ये अधिकार कहां से आया? पहला कहां से आया?
और क्यों यीशु हमें बता रहे हैं कि वो अधिकार हमें दिया गया है, ये कहां से आया, ये यीशु क्यों बता रहे हैं और क्या हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हम थोड़ा इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। आमेन। ओके, लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू Genesis first chapter. Before we understand believers authority, we need to understand where this authority came from. Okay, or if it is saying believers authority, we need to understand who is this believer. Okay, let us go little. Okay, Genesis first chapter, उत्पत्ति पहला अध्याय 26 and 27, 28. I will read it for you. Okay, उत्पत्ति पहला अध्याय 27, 26, 27, 28. Okay. Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So यहाँ पर पहला वचन 26 कहता है, let us make man in our own image according to our likeness. इसका मतलब है प्रभु कैसा है वैसा प्रभु चर्चा में है, उनके जो भी उनके साथ है। ओके, क्या चर्चा में है? चलो हम लोग इंसान को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जो अपने जैसा दिखता है, अपने जैसा है, अपने स्वरूप में अपने जैसा दिखता है। let us make man in our own image, in our own likeness. So when God said let us make man, God thought let man be like us. Hallelujah. So you can imagine you are just like God now. Hallelujah. Okay, let's go further. Okay, let's not get stuck here. Okay, and let us make man in our own image according to our likeness. Let them, first word, have dominion. Dominion क्या है? डोमिनियन बोले तो क्या है? डोमिनियन इज समथिंग वेयर यू डोमिनेट। हालेलुया। यहां पर हिंदी में शायद अधिकार लिखा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ओके, लेट मी रीड द फर्दर फर्स्ट वर्स व्हाट इट सेज। अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के जैसा उत्पन्न किया। हालेलुया। उसके जैसा, उसके स्वरूप के जैसा, उसके जैसा दिखने जैसा प्रभु ने मनुष्य को बनाने की योजना की। हालेलुया। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज, when God said let us make man in our own image, in our own likeness, then it says let them have dominion. Let them have dominion. और परमेश्वर ने उनसे आशीष दी और उनसे कहा फलो और पृथ्वी में भरो और समुद्र की मछलियों को और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। I wanted this word अधिकार, that's why I was reading in Hindi. अधिकार करो। Amen. So God told, let me not make just man like me, or let him have the image like me, but let him have dominion. Hallelujah. जब भी परमेश्वर ने कहा अधिकार, इन्हें अधिकार देंगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाया और अधिकार दिया। Okay, let's read further. Now the further verse says 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female, and he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every living thing that moves on the earth. इसका मतलब है परमेश्वर जब भी इंसान को बनाएंगे सोचा, बनाकर उनको अधिकार देंगे ऐसे सोचा, तो यहाँ 28 वचन में देखते हैं हम लोग, परमेश्वर बनाया, बना के क्या किया? अधिकार दिया। किस पे अधिकार दिया? समुद्र में जो मछली है, आकाश में जो पंछी उड़ता है, और धरती के ऊपर जो कोई भी वहां पर जानवर है या कोई भी रेंगने वाला कुछ भी हो, उसके ऊपर अधिकार दिया। इसका मतलब समुद्र में, आकाश में और पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार दिया।
हालेलुया। तो फर्स्ट अधिकार, फर्स्ट डोमिनियन केम टू मैन नॉट इन लूक 10th चैप्टर, लूक 10वां अध्याय में नहीं आया, परंतु हम देखते हैं जब भी प्रभु इंसान को बनाया तभी ही प्रभु ने मनुष्य को अधिकार दे दिया। हालेलुया। Okay, now get clear this picture. Why I'm repeating again and again is because you have to know what is this and why Jesus is again telling I will give you. इसका मतलब या प्रभु देने, आदम को देने में और यीशु अपने चेलों को देने में यहाँ पे एक बड़ा कहानी है, वो समझना जरूरी है। What happened between God when he gave dominion to Adam and Jesus giving authority to his disciples? You know, there is one story we need to understand. Amen? Okay. तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो जब ये प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाकर एडन गार्डन बनाया, एडन गार्डन बनाकर प्रभु ने कहा ये सब कुछ तेरा है। ओके, आई एम रनिंग बिकॉज देयर इज नो टाइम टू गेट स्टक अप इन दिस। ओके, प्रभु ने मनुष्य को बनाया, गार्डन को, सबको बनाया और प्रभु ने कहा ये सब तेरा है, तू इधर कुछ भी कर सकता है और इसमें ये गार्डन में जो भी फल है एडन गार्डन में वो तुम खा सकते हो सिवाय एक फल के। वो कहां लिखा है? ओके, लेट्स रीड टू जेनेसिस, वी विल रीड 2nd chapter verse 17। यहां पे लिखा है, आई विल रीड इट फॉर इन इंग्लिश। बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल यू शैल नॉट ईट, फॉर इन द डे दैट यू ईट ऑफ इट यू शैल श्योरली डाई। तो प्रभु कह रहे हैं तू इनका ये नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का जो फल है इसे मत खा, अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। ओके, नाउ वन क्वेश्चन, व्हाटएवर गॉड सेज will it happen or no? It will happen, yes. Why it will happen? Because it is not any man's word, it is God's word. Amen, hallelujah। ये प्रभु का जो भी वचन है या प्रभु का जो भी बात है, जो प्रभु बोलते हैं वो होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मनुष्य का बात नहीं, ये मनुष्य का वचन नहीं, ये है प्रभु का वचन, प्रभु की बात है। तो इसका मतलब है प्रभु जो बोलते हैं वो होता है। आमीन, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं he is not a man to lie, God is not a man to lie। इसका मतलब जो प्रभु बोलते हैं वो 101% वो होता है। तो 17 वर्ष में हम देखते हैं प्रभु बता रहे हैं आदम को, अगर तू ये फल खाएगा, कौन सा फल? जो नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का है, अगर तुम वो खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ये कहने के बाद प्रभु जाते हैं। प्रभु जाने के बाद थोड़े देर के बाद क्या होता है तुम्हें कहानी मालूम है। तो क्या हुआ? वहां पर हवा के सामने वहां पर शैतान आता है। शैतान मतलब लूसीफर आता है। लूसीफर आने के बाद, शैतान आने के बाद तो हवा को जैसे ही वहां पर वो मुलाकात होती है तो पहला कन्वर्सेशन क्या है, पहली बातचीत क्या होती है, आइए हम देखते हैं। ओके, 3रा अध्याय पहला वचन। ओके, नाउ जेनेसिस सेम 3rd chapter verse। Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made. And he said to woman, has God indeed said, you shall not eat every tree of the garden? तो यहां पर आते ही शैतान लूसीफर आते ही हवा के साथ क्या बातचीत कर रहा है? पहले आते ही बात कर रहा है, क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम ये फल नहीं खाना है? क्या तुम कौन सा भी फल गार्डन में नहीं खाना है? हालेलुया। तो प्रभु जो कहा उसको आधा सच रखे, उसको वो प्रभु क्या बोलते हैं 15th में, यू शैल ईट फ्रीली ऑफ एवरी ट्री, एवरी फ्रूट यू कैन ईट फ्रीली। तो यहां पर यह फ्री निकाल कर वहां पर क्या प्रभु ने कौन से भी फल नहीं खाने के लिए बताया? आगे देखते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है? यू शैल नॉट ईट not eat of every tree of garden. And the woman said to the serpent, we may eat fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, you shall not eat it, nor you shall touch it, lest you die. हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है इधर? अगर दूसरे वचन में देखते हैं तो वुमन ने, हवा ने सरपेंट को कहा, हम सब खा सकते हैं परंतु ये नहीं खा सकते। तो आगे देखते हैं, बट द फ्रूट ऑफ दिस ट्री विच इज इन द मिड्स, जो बीच में जो वो
वो, हाँ, जो बीच में जो पेड़ का फल है वो नहीं खाना चाहिए। तो आपको ये कन्वर्सेशन मालूम है, हम लोग यहाँ पे स्टक नहीं हो जाएंगे। तो शैतान हवा को बातचीत में लगाकर उलझाकर, तो वहां पर आगे वचन में देखते हैं, शैतान बोलता है हवा को, 4वां वचन, देन सर्पेंट सेड टू वुमन, यू शैल नॉट श्योरली डाई, तुम वहां पर मरोगे नहीं। क्यों ये बात आता है? ये बात इसलिए आता है क्योंकि वहां पर हवा बताती है अगर ये फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो शैतान क्या बताता है? नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम पक्का नहीं मरोगे। देखो आगे क्या लिखा है, 5th वचन, फॉर गॉड नोज दैट इन द डे यू ईट इट your eyes will be opened and you will be like God knowing good and evil। तो यहां देखो शैतान क्या बोल रहा है, अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर, तुम अगर ये फल खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम प्रभु के जैसे बन जाओगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है वचन? शैतान बोल रहा है नहीं, तुम नहीं मरोगे, अगर तुम खाओगे पहले तुम्हारा आंख खुलेगा और तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। देखो यहां पे हवा सोचना था, अरे मैं तो ऑलरेडी प्रभु के स्वरूप में हूं, मैं तो प्रभु के जैसी बनी हूं, ऑलरेडी मैं प्रभु जैसे हूं। ये शैतान बोल रहा है, ये सांप बोल रहा है कि अगर मैं खाऊंगी तो मैं प्रभु जैसा बन जाऊंगी। यहां पे सोचना था, ये नहीं सोची। बिना सोचे वो हवा क्या की, अरे मैं अगर इस फल को खाऊंगी तो प्रभु जैसा बन जाऊंगी, इतना सोचकर तो वो क्या की, वो फल को लेकर वो खाती है। She will not discern, she will not think over it. I am already in the image of God, I am already like God, there is no need for me to eat and become like God. Serpent deceived, हालेलुया, धोखा हुआ है, हालेलुया। शैतान ने वहां पर इंसान को धोखा दिया है। क्या धोखा? कि तुम अगर खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। आमीन। तो क्या हुआ? तो हवा ने फल को लिया और उस फल को खाया। तो यहां पर क्या हुआ? जो प्रभु ने नहीं खाने के लिए बताया वो फल हवा ने खाया। उसके बाद वो हवा ने क्या किया? वो जाकर आदम को देती है और आदम को बोलती है, देख आदम, मैं फल खाई और प्रभु बताए थे कि अगर तुम फल को खाओगे तो तुम मरोगे। देखो मैं फल खाई और नहीं मरी। तो वो परेशान हुआ, अरे तुम क्यों खाई? Why did you eat the fruit? Maybe there was a conversation like this, but Eve convinced Adam to eat the fruit। हवा ने किसी न किसी तरह वो आदम को वहां पर फल खाने के लिए मजबूर किया। तो हवा ने मजबूर करते ही आदम क्या किया? उसने भी फल खाया। वो फल खाते ही हम देखते हैं थोड़ी देर बाद 8वां वचन में परमेश्वर आया। परमेश्वर आते ही वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर बुलाया, आदम किधर है? तो वो क्या किया? वो छुप रहा था। क्यों छुप रहा था? क्योंकि आदम को मालूम था उसने गलती किया। क्या गलती है? गलती ये है कि प्रभु जो बताए फल नहीं खाना वो खाए। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? ये कहानी आप समझना है क्योंकि देयर इज अ बिग ट्रूथ अबाउट अथॉरिटी, देयर इज अ बिग ट्रूथ अबाउट डोमिनियन। इफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, if you understand, it will be more easy for me to tell the further things whatever I want to share। अगर आप इसको समझेंगे, मुझे आगे जो भी मैं बताना चाहता हूं उसको मुझे आसान होगा। Okay, now come on, let's get into the story। तो when God came, Adam was hiding। Why he was hiding? Because he ate the fruit। What did he do? He disobeyed God। क्यों परमेश्वर आते ही वो आदम चुप रहा था? क्योंकि उसे मालूम था वो गलती किया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है 2 अध्याय 17 वचन में, अगर तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। हालेलुया। तो आगे देखो तो क्या हुआ? यहां पर हम देखते हैं आगे 14, 15, 16 वर्ष में परमेश्वर आदम को, हवा को, सांप को और धरती को श्राप देता है। हालेलुया। क्या श्राप देता है? हवा को श्राप देता है,
आदम को श्राप देता है, सांप को श्राप देता है और धरती को श्राप देता है। हालेलुया। तो श्राप वहां से शुरू हुआ। श्राप नहीं था, आदम को सिर्फ ब्लेस किया गया था। जहां पर पाप आया, श्राप आया। हालेलुया। जब श्राप आया तो इंसान क्या करा? जहां पर ईडन गार्डन में सुख से रहना था, वो मेहनत, पसीना बहा के मेहनत करके कमाना पड़ा। हालेलुया। यहां पर वही श्राप है। आमीन। ओके, तो यहां पर श्राप आया। तो श्राप आते प्रभु और क्या किया? उनको ईडन गार्डन्स में बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं, मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? इसलिए क्योंकि प्रभु ने कहा, आदम अगर तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। तो हम देखते हैं वही उत्पत्ति 5वां अध्याय 5वें वचन में वहां पर लिखा है, सो ऑल द डेज दैट एडम लिव्ड वेर 930 years एंड ही डाइड। तो यहां पर वचन में लिखा है एडम लिव्ड फॉर 930 years। इसका मतलब आदम फल खाते जो मरना चाहिए था वो 930 साल जिया। इसका मतलब ये कैसा जीना था और प्रभु कौन सा मरण के बारे में बता रहा था। ये समझना जरूरी है, यही समझना जरूरी है। सुनिए, जब भी प्रभु मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाते ही प्रभु ने क्या किया? जो मिट्टी से वो एक शरीर का आकार में एक पुतला जैसा बनाकर, he made the body with the clay, and the Bible says he breathed. I will not go detail into it. He breathed into his nostrils, and Bible says when he breathed, the man became living being. Hallelujah. जब भी प्रभु वो मिट्टी से वो पुतला, शरीर जैसा आकार का पुतला बनाकर अपने सांस जो नाक में वहां पर वो छोड़ता है, तो हम देखते हैं वो जो उसके अंदर जान नहीं था वो जान आया। तो वो क्या था? एक्चुअली हम देखते हैं द गॉड ब्रेथ्ड इनटू हिज नोज। दैट ब्रेथ इज नथिंग बट न्यूमा। ये न्यूमा वर्ड हम देखते हैं, इट इज स्पिरिट। हालेलुया। वो कहता है हिब्रू वर्ड न्यूमा को, वो है स्पिरिट। सो गॉड ब्रेथ्ड स्पिरिट इनटू हिज नॉस्ट्रिल। तो जब भी प्रभु बनाते ही जब भी सांस फूंका, वो इंसान जो नहीं था इंसान बन गया। कैसा इंसान बन गया? जब भी आत्मा वो शरीर में आया। हालेलुया। तो प्रभु बता रहे हैं अगर तुम फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो कौन सा मरण के बारे में प्रभु बता रहे? कौन सा मरण है मालूम? वो है आत्मिक मरण। जब भी आदम फल खाया, जो प्रभु को वहां पर विरोध हो गया, विरोध होकर वो जब फल खाया, तभी वो कौन सा मरण पाया मालूम है? वो आत्मिक मरण। इसीलिए बाइबल में लिखा है वो शारीरिक मरण वो 930 साल पर हुआ। 930 years, that is physical death. But the spiritual death was when he ate the fruit. That is the time he died spiritually. Hallelujah. Okay, now come on. Now Satan deceived. Now because of deception, death came. What death? Spiritual death. Amen. Not only death came, now we will see in same Genesis 6th chapter. Okay. Now we see what happened there. We see a story of a man called नोवा। यहां पर एक नोवा की कहानी है, हम उस कहानी में नहीं जाएंगे। तो यहां पर वो एक पाप इतना बड़ा, इतना भरने लगा दुनिया में, वो पाप भर के the sin started increasing so much. We will see one verse where it says, Genesis 6 chapter 5th verse, Genesis उत्पत्ति 6वां अध्याय 5वां वचन, ऐसा लिखा है, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of thought of his heart was only evil continually. And the Lord, 6th verse, and the Lord was sorry that he made man on earth, and he was grieved in his heart. हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, यहां पर वचन लिखा है मनुष्य की वहां पर विकेडनेस, क्या बोलते हैं विकेडनेस को? वहां पर the man's wickedness was so much on the earth, it reached God, it seems. Hallelujah. वहां पर ये wickedness मनुष्य की
घटियापन, विकेडनेस, धोखाधड़ी, ये पाप, ये सब परमेश्वर के सामने आ गया। इतना था वो परमेश्वर को रीच हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर सोचा परमेश्वर, मैं इस मनुष्य को क्यों बनाया? Why did I make man? Look at this. We will read again. Then the Lord saw that the wickedness of man was so great on earth that every intent of thoughts of his heart was only evil. And the Lord was sorry that he made man. परमेश्वर मनुष्य का वो गलती और पाप सब देखकर परमेश्वर बताया कि मैं मनुष्य को क्यों तो बनाया। God was sorry that, yes, दुष्टता, मनुष्य की दुष्टता इतना था, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस मनुष्य को क्यों तो बनाया। God made man with such love, with such, with such heart that he wanted to make man like him. And when he made, he was so happy. God made everything and he saw and he became happy. It was good, the word of God. God said and it was, and it was good. So when God made man, when God saw man is like this, he was happy about it. But now the word says in 6th chapter, now God is telling because of man's wickedness, he's feeling sorry that why he made man. Then what God told? God found, favor. God found favor in the eyes of Noah. Noah found favor in the eyes of God because Noah was the only man in the whole earth who was living according to God. Hallelujah. तो नोवा, परमेश्वर नोवा को आके बताता है कि मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं। So why this destruction? क्यों ये परमेश्वर ये दुनिया को, संसार को पूरा खत्म करने की बात कर रहा है? क्योंकि वहां पर पाप, ये पाप कहां से आया? आदम और हवा से आया। वो पाप, एक पाप, अभी इतना पाप हुआ है, अभी परमेश्वर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो रेडी हुआ है। हालेलुया। Why all this happened? You know why? Because of dominion. Because of dominion. ये डोमिनियन के चक्कर में ये सब हुआ है, ये अधिकार के चक्कर में ये सब हुआ है। परमेश्वर आदम को अधिकार दिया, आदम को अधिकार देते शैतान आया धोखे से, उनको वो फल खाने लगा। वो फल खाते ही वो लोग क्या हुए? वो आत्मिक में वो मर गए। आत्मिकता में मरते ही जो पाप एक आदमी किया था उससे वो पाप बढ़ते गया। इतना पाप हुआ, परमेश्वर के आगे इंसान का दुष्टता इतना आया, परमेश्वर सोचा अभी मैं इसको खत्म कर दूंगा। खत्म कहानी। Are you all understanding? This much all happened because of dominion. Now listen to me. Now is the main climax you need to understand. Hallelujah. Okay. Now after we see God, sent the rain. God told Noah, make the boat, and God made Noah's family to be in the boat. He made all the animals, birds, everything to be in the boat, and he he made the rain to come for 40 days, and the whole earth, the whole humanity which was there was destroyed. Hallelujah. And Noah's family was the only one which was living, which was surviving. Then what happened? The Noah's family continues. And now, from Noah's family, we see till the time Jesus could come, it was prophesied. What was prophesied? A savior will be born. एक उद्धार करता वहां पर आने वाला है, मसीहा